Hello everyone, welcome to my educational YouTube channel. Before starting my video, I request to all of you please subscribe my YouTube channel if you don't subscribe. Hello students, my name is Neha Gupta. I am postgraduate and seated qualified teacher. My today topic is class 6 subject science chapter number 8. Chapter name is motion and measurement of distance. My first question is definition of motion या define motion. When a body is continuously changing its position with respect to the frame of reference, then we say that the body is in motion. कोई भी वस्तु जब अपनी कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन को चेंज करती है with respect to the frame of reference, then we say the body is in motion. ठीक है स्टूडेंट्स, when a body is continuously changing its position, जब कोई भी बॉडी कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन को चेंज करती है, ठीक है, उसे मोशन कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है give two examples each of modes of transport used on land, water and air. लैंड, हमें सबके दो दो एग्जाम्पल्स देने हैं. लैंड का, वाटर का एंड एयर का. लैंड ट्रांसपोर्ट का क्या एग्जाम्पल है? ट्रेन एंड बस. वाटर का क्या एग्जाम्पल है? शिप एंड बोट. और एयर ट्रांसपोर्ट का क्या एग्जाम्पल है? एयर का हेलीकॉप्टर एंड एरोप्लेन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. हमें चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम बुक के पेज से ही एक बार देख लेते हैं. ठीक है, एक बार मैं आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा देती हूँ. ठीक है. देयर इज़ ऑलवेज अ नीड फॉर पीपल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत हमेशा ही पड़ती है. Transportation is a way of moving people and things from one place to another. Have you ever wondered how people traveled before all the technologies advanced that we have today? Let us learn about the story of transport to understand how people used to travel from one place to another. In earlier Let us learn about the story of transport to understand how people used to travel from one place to another in earlier times. Story of transport. In ancient time का मतलब है पुराने समय में, when no means of transport, जब transport का कोई means नहीं होता था, transport of means were available, people traveled mainly on foot and carried luggage on their back. तब people क्या करते थे? अपने फुट से, अपने पैदल चलते थे. एंड कैरिड लगेज, अपना जो लगेज है अपनी बैक पे ढोते थे. कैरिड लगेज. Later humans being started using animals such as horses, camels and elephants for transportation and carrying goods from one place to another. Students ये मत समझना कि आगे ये पूरे चैप्टर की रीडिंग है, हमने क्वेश्चन आंसर किए हुए हैं. ठीक है, ये सिर्फ मैं फर्स्ट फ्रंट पेज की रीडिंग कर रही हूँ, बाकी आगे सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं. ठीक है. Later human beings started using animals such as horses, camels and elephants for transportation and carrying goods from one place to another. ठीक है, फिर क्या क्या हमने यूज़ किया? एनिमल्स का यूज़ करना शुरू कर दिया. हॉर्सेस पे जाते थे हम, कैमल्स पे, एलिफेंट्स पे, फॉर ट्रांसपोर्टेशन कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक वस्तुओं और पर्सनस को ले जाने के लिए फिर हमने एनिमल्स का यूज़ करना शुरू कर दिया. द इन्वेंशन ऑफ द व्हील ब्रॉट अबाउट मैनी चेंजेस. जो व्हील है उसके आविष्कार ने बहुत सारे चेंजेस ला दिए हमारी लाइफ में. कार्ट्स पुल्ड बाय एनिमल्स वर यूज्ड टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. द व्हील्स इज नोन द बेसिस ऑफ
all our vehicles like bicycles, scooters, cars, and motorbikes. The invention of steam engine introduced a new source of power. It led to the development of train and automobiles. Motor ships were used as means of transport on water. These inventions greatly reduces the time to travel. ठीक है. Animal driven cars were major means of transport during the ancient time. आप पिक्चर में देखिए, एंशियंट टाइम में, पुराने समय में पुल कार्ट होती थी, उससे लोग जाया करते थे. ठीक है. Animal driven cars were major means of transport during ancient time. Today इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, आज के समय में क्या क्या है, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स है, एरोप्लेन्स है. ठीक है. Supersonic jet and high-speed automobiles have further reduced traveling time. Spaceships are used for transportation to outer space. आप ये देख लीजिए, मेट्रो ट्रेन है, कार है एंड एरोप्लेन है. सम मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ये हैं और एंशियंट टाइम का ऊपर दे रखा है. ये सिर्फ हमने जो चैप्टर का स्टार्टिंग है उसमें हमने ये चीज़ देखी है. आगे हम सारे क्वेश्चन आंसर ही करेंगे. ठीक है. सबसे पहले हमने मोशन की डेफिनेशन करी है, फिर हमने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट करे हैं और एंशियंट टाइम में क्या क्या होता था और अब के टाइम में क्या है, हमने वो करा है. ठीक है. और इसमें हमें बताया गया है कि जो पहिए का आविष्कार है उसने हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया. अब स्टूडेंट्स, ये आप क्वेश्चंस जो देख रहे हैं इनको मैं थोड़ा छोड़ रही हूँ, इनको मैं बाद में आपसे डिस्कस करूँगी. ठीक है. आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए. ये जो पेजेस मैंने ऊपर करे हैं इनमें से क्वेश्चंस मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगी. आप परेशान मत होइएगा. ठीक है. सबसे पहले हम करते हैं डिफाइन मेज़रमेंट. धीरे धीरे चलेंगे, हर पेज बहुत धीरे धीरे चलाएंगे ताकि आप इजीली कर सकें. कोई भी पेज हम जल्दी जल्दी नहीं चलाएंगे. ठीक है. ये आप देखिए, डिफाइन मेजरमेंट. मेजरमेंट इज द process of comparing the unknown quantity of an object to the measured with a standard unit of measurement. अच्छा, ये जो मैंने स्पेलिंग्स दोबारा लिखी है ना, ये नीचे थोड़े से ना स्पेलिंग्स टच हो रही थी तो इसलिए मैंने दोबारा लिखी है. मेजरमेंट इज द Measurement is the process of comparing the unknown quantity of an object to the measured with a standard unit of measurement. ठीक है. ये स्टैंडर्ड और मेजरमेंट दो बार लिखा है, ये नीचे वाली स्पेलिंग ही दोबारा लिखी है. ठीक है. ये हो गई हमारी मेजरमेंट की डेफिनेशन. इसके आगे हम करते हैं डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी. एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी. ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसे नापा जा सकता है वो क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है. ठीक है. मेजरमेंट में क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को मापते हैं, माप करते हैं किसी भी चीज़ का, दैट इज़ कॉल्ड मेजरमेंट. इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन, गिव एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी के आप एग्जांपल्स दो जिनको नापा जा सकता है, जिनको नापना या मापना पॉसिबल होता है, उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. लेंथ, मास, वॉल्यूम. ये सेकंड वाला मास है. लेंथ, मास, वॉल्यूम. Time, speed and temperature that can be measured are called physical quantities. Length, mass, volume, time, speed and temperature that can be measured are called physical quantities. Next है हमारा measurement of time, give examples. Measurement of time, give examples. At what time should we get. अच्छा, आपको ये मैंने थोड़े से एग्जांपल्स लिखे हैं कि मेजरमेंट ऑफ टाइम में क्या क्या इंक्लूडेड होता है. गिव एग्जांपल्स. एट व्हाट टाइम, अगर एट व्हाट टाइम शुड वी गेट अप, तो इसको क्या हम कहेंगे, मेजरमेंट ऑफ टाइम. हाउ मच टाइम डू वी टेक टू गेट रेडी.
ये किससे हम ये क्या कहलाएगा, मेजरमेंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव एग्जांपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। आप एग्जाम्पल्स दीजिए मेजरमेंट ऑफ लेंथ के। हाउ मच डिस्टेंस डू वी हैव टू ट्रैवल फ्रॉम आवर होम टू आवर स्कूल। हमने अपने घर से लेके स्कूल तक का कितना डिस्टेंस कवर किया, ये इसको हम किस में नापेंगे, मेजरमेंट ऑफ लेंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव एग्जांपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास। व्हेन वी बाय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स द शॉपकीपर मेजर्स द क्वांटिटी, दिस इज द मेजरमेंट ऑफ मास। व्हेन वी बाय, जब हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदते हैं, द शॉपकीपर मेज़र द क्वांटिटी, तब शॉपकीपर जो है क्वांटिटी को मेज़र करता है। दिस इज़ द मेज़रमेंट ऑफ मास। ये जो है मेज़रमेंट ऑफ मास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव एग्जाम्पल ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, गिव एग्जाम्पल ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। आपको मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर का एक एग्जाम्पल देना है। व्हेन वी फॉल इल, जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर। तो डॉक्टर क्या करता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर नापता है। दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमने क्वेश्चन थोड़ा सा रह गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेजरमेंट इन एशियन टाइम। पुराने समय में वस्तुओं को कैसे नापा जाता था। ये क्वेश्चन क्या है, मेजरमेंट इन एशियन टाइम। ठीक है, इन एशियंट टाइम, इन अर्लियर टाइम्स, पीपल यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी to measure length. The length of an object was measured by using handspan, cubic arm length, pace, foot, and length of the outstretched arms. They all are not accurate and reliable. ठीक है, आपको पता है हमारी मम्मियाँ वगैरह कैसे नापती थी चीज़ों को, ऐसे पूरे हाथ को खोल के, नीचे आप देखिए ऐसे हाथ को खोल के डिस्टेंस नापते थे, या हम पैर को ऐसे खोल के नापते थे, या हम अपने आर्म की लेंथ से नापते थे कि ये 1 मीटर हो गया, ऐसे ऐसे करके हम नापते थे। आपको याद होगा, आप अपने मम्मी से, दादी से पूछना, पहले चीज़ों को ऐसे ही नापा जाता था। आप फर्स्ट देखिए, जैसे हम ऐसे हाथ रख के अंगूठे से लेकर छोटी उंगली तक ऐसे नापते थे कि ये इतने सेंटीमीटर हो गया, या ऐसे हो गया। तो एंशिएंट टाइम में चीज़ों को ऐसे ही नापा जाता था। ठीक है, ये हमारा ये क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। आ भी सकता है पेपर में। हमें हर चीज़ को समझ के चलना है, ताकि हमें पेपर में ये ना फील हो कि हमें ये नहीं आता और हमें वो नहीं आता। हमें हर चीज़ को समझ के चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन व्हाट इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। डिफाइन व्हाट इज स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। Standard units of measurement are those that have a fixed quantity and therefore do not vary from person to person or place to place. अच्छा, जो पीछे एंशिएंट टाइम में हम नापते थे उसमें क्या है, पर्सन टू पर्सन जो हम माप करते थे वो वैरी होगा। अगर किसी बच्चे का हाथ छोटा है तो वो डिस्टेंस कम मेज़र होगा, और किसी व्यक्ति का हाथ बड़ा है तो वो डिस्टेंस ज़्यादा मेज़र हो जाएगा। लेकिन क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़रमेंट वो होती है जिससे कोई भी व्यक्ति अगर उसको मापेगा तो डिस्टेंस सेम ही मिलेगा। दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर दोज दैट हैव अ फिक्स्ड क्वांटिटी, जिनकी फिक्स्ड क्वांटिटी होती है, एंड देयरफॉर डू नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और पर्सन टू पर्सन अगर कोई नापता है तो वो वेरी नहीं करता, मतलब डिफरेंस नहीं आता। जैसे स्केल है, स्केल से कोई 5 सेंटीमीटर नापेगा या मैं नापूंगी तो वो क्या है, सेम आएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने नापा तो अलग आएगा और आपने नापा तो अलग आएगा। लेकिन हाँ, अगर हम किसी चीज़ को हाथ से नाप रहे हैं, ठीक है, हैंड्स पेन से नाप रहे हैं, तो वो डिफरेंट आएगा, जैसे हम एंशिएंट टाइम में करते थे। तो ऐसी यूनिट्स जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं, चाहे कोई भी नापे तो उसमें वेरी नहीं होता, डिफरेंस नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई वी नीड स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है।
ठीक है. इट इज़ नेसेसरी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इट इज़ नेसेसरी टू हैव स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कन्वीनियंस इन मेजरमेंट. यूनिफॉर्मिटी एंड कन्वीनियंस इन मेजरमेंट का मतलब है ताकि हमें किसी भी चीज़ को नापने में आसानी हो, मापने में आसानी हो, और यूनिफॉर्मिटी एंड कन्वीनियंस हो. यूनिफॉर्मिटी हो मतलब ये ना हो कि मैं अगर किसी चीज़ को नाप रही हूँ तो अलग आए माप, और आप नाप रहे हैं तो अलग आए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर साइंटिस्ट अडॉप्टेड यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर द मेजरमेंट. किस सन में जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्ड यूनिट्स को मतलब मेजरमेंट को वो किया था एक्सेप्ट. इन 1960, ईयर 1960 में इसकी खोज हुई थी कि मतलब ये जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है. ठीक है. डिफाइन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉर द एसआई यूनिट्स. इन 1960 define international system of units or the SI units. In 1960, scientists adopted uniform and convenient common sets of standard units for the measurement of various physical quantities. This system is known as International System of Units or SI. In 1960, scientists adopted uniform and convenient common sets of standard units. साइंटिस्ट ने किसी भी चीज़ को नापने के लिए इंटरनेशनल सिस्टम को अडॉप्ट किया. ठीक है. क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, नेम सम SI यूनिट्स दैट आर यूज्ड इन ऑल द countries of the world for some physical quantities. The SI units that are used in all the countries of the world for some physical quantities are, ये सब जगह सेम होती हैं. The SI unit of length is meter. SI unit लेंथ को नापने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? मीटर को यूज़ करते हैं. फुल फॉर्म में क्या लिखते हैं? METRE मीटर, और शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल m. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 है, द SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. अगर हमें टाइम को नापना है तो किस में नापेंगे? सेकेंड. और उसके लिए क्या यूज़ होता है? S यूज़ होता है. नेक्स्ट है हमारा, द SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम. मास के लिए क्या SI यूनिट है? किलोग्राम है. ठीक है. द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन. SI यूनिट टेम्परेचर के लिए क्या है? केल्विन है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन मेजरमेंट ऑफ लेंथ. डिफाइन मेजरमेंट ऑफ लेंथ. लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स और प्लेसेस. लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट्स है उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो लेंथ कहलाता है, और प्लेसेस. ठीक है. विथ ब्रेथ, डेप्थ, थिकनेस, डिस्टेंस एंड हाइट्स आर ऑल मेजरमेंट ऑफ लेंथ. लेंथ को मेजर करने के लिए क्या क्या होता है? विद ब्रेथ, डेप्थ, थिकनेस, डिस्टेंस एंड हाइट्स आर ऑल मेजरमेंट ऑफ लेंथ. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन वी मेज़र लेंथ. हम लेंथ को कैसे मापते हैं? लेंथ कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ रूलर. लेंथ को कैसे नापा जाता है? रूलर की हेल्प से. अ मेजरिंग टेप एंड अ मीटर रोड. मेजरिंग टेप की हेल्प से नाप सकते हैं. and a meter rod, whichever is convenient for the required purpose. जो भी हमें अवेलेबल हो उनमें से हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. लेंथ कैन बी मेजर्ड with the help of a ruler, a measuring tape and a meter rod, whichever is convenient for the required purpose. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डिवाइस वी यूज टू मेजर विच डिवाइस वी यूज टू मेज़र अ स्मॉल लेंथ और शॉर्ट डिस्टेंस. अगर हमें स्मॉल लेंथ को या शॉर्ट डिस्टेंस, लेंथ को नापना है स्मॉल, या हमें शॉर्ट डिस्टेंस को नापना है मेजर्ड इन सेंटीमीटर, तो हम किस में मेज़र करेंगे उसको? सेंटीमीटर में.
एग्जाम्पल है इसका पेंसिल और नोटबुक। अगर हमें पेंसिल और नोटबुक को मेज़र करना है तो हमें उसको सेंटीमीटर में मेज़र करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर्स। 1 मीटर कितने सेंटीमीटर्स के बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर्स के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ वी वांट टू मेजर द थिकनेस ऑफ अ थिन वायर व्हाट वी कैन यूज। अगर हमें कोई किसी थिन वायर की मोटाई को नापना है तो हम उसे कैसे मेजर करेंगे? थिकनेस ऑफ सच ऑब्जेक्ट मेजर्स इन मिलीमीटर। ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी थिकनेस को मिलीमीटर में मापा जाता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? 10 मिलीमीटर्स के। और 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। नेक्स्ट है हमारा हाउ वी मेज़र अ लार्ज लेंथ और लॉन्ग डिस्टेंस। हम हाउ वी मेज़र अ लार्ज लेंथ, हम लार्ज लेंथ को और लॉन्ग डिस्टेंस को कैसे नापते हैं? मेजर्ड इन किलोमीटर, वी मेजर्ड इन किलोमीटर। हाउ वी मेज़र अ लार्ज लेंथ और अ लॉन्ग डिस्टेंस, मेजर्ड इन किलोमीटर। अगर हमें लार्ज लेंथ को लॉन्ग डिस्टेंस को नापना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे? मेजर्ड इन किलोमीटर। जैसे कि मान लो हमें दिल्ली से लेकर गुड़गांव तक की दूरी नापनी है, दिल्ली से लेकर जयपुर तक की दूरी नापनी है, तो हम उसको किस में नापेंगे? मेजर्ड इन किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। 1 किलोमीटर कितने के इक्वल होता है? 1000 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ वी मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स। अगर हमें स्टार्स के बीच का डिफरेंस नापना है तो हम क्या करेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स इज मेजर्ड इन लाइट ईयर्स एंड नॉट इन किलोमीटर्स। द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स, जो स्टार्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस जो होता है मेजर्ड इन लाइट ईयर। कैसे नापा जाता है? लाइट ईयर में नापा जाता है। एंड नॉट इन किलोमीटर्स, किलोमीटर में नहीं नापा जाता। ठीक है, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स, उसको आप कैसे मेज़र करेंगे? तो इसका आंसर है लाइट ईयर एंड नॉट इन किलोमीटर। इसको हम किलोमीटर्स में नहीं नापेंगे, लाइट ईयर में मापेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द यूनिट्स दैट आर यूज्ड टू मेजर लार्ज क्वांटिटीज आर। अगर हमें द यूनिट्स दैट आर यूज्ड टू मेजर, जो लार्ज क्वांटिटीज को मेजर करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? मल्टीपल्स ऑफ यूनिट्स। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? मल्टीपल्स ऑफ यूनिट्स। नेक्स्ट है हमारा, थोड़ी सी इसकी इमेज क्लियर नहीं आई है, फिर भी मैं रीडिंग करके बता रही हूँ, आपको पता चल जाएगा। जब पीडीएफ बनाते हैं ना फ्रेंड्स तो कभी कभी हो जाता है। ठीक है, द यूनिट्स दैट आर यूज टू मेजर स्मॉलर क्वांटिटीज आर कॉल्ड सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट। द यूनिट्स दैट आर यूज टू मेजर स्मॉलर क्वांटिटीज, ऐसी यूनिट्स जो स्मॉलर क्वांटिटीज को नापने के काम आती है उन्हें क्या कहते हैं? सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट्स। उन्हें क्या कहते हैं? सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Neha's house is 7,450 meters from her friend's house. Calculate the distance in kilometer. Solution है इसका, distance है 7,540 meters. We know 1 kilometer is equal to 1000 meters. तो डिस्टेंस कैसे हम निकालेंगे? 7,540 डिवाइडेड बाय 1000, तो 3 ज़ीरोज़ हैं तो आगे से आप काउंट करेंगे 1 प्लेस, 1 2 3 3 प्लेस के बाद आप
ये लगा देंगे तो आपका क्या आएगा 7 पॉइंट लगा देंगे 3 जीरोस के बाद, तो क्या आएगा 7.54 किलोमीटर। ठीक है, 7.54 किलोमीटर। द आंसर क्या आएगा, द डिस्टेंस इन किलोमीटर इज 7.54 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राहुल हैज़ अ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राहुल हैज़ अ रोप विच इज़ 2 मीटर्स लॉन्ग। एक्सप्रेस दिस लेंथ इन सेंटीमीटर। हमें उसकी जो लेंथ है सेंटीमीटर में बतानी है। लेंथ कितनी है, 2 मीटर्स है। वी नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। तो कैसे लिखेंगे, लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू 100, 200 सेंटीमीटर। सो द लेंथ ऑफ द रोप इज़ 200 सेंटीमीटर। 2 मीटर की एक रोप है, उसको हमें सेंटीमीटर्स में एक्सप्रेस करना है। तो जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 200 सेंटीमीटर आएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ टू मेज़र द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है उसको कैसे नापा जाता है। टू मेज़र द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट से we place the scale along the object in such a way that the zero mark, ये देख रहे हैं अब ये ज़ीरो मार्क है of the scale with the left end of the object। ये देखिए जैसे कि हमें ये देखो यहाँ पे 4 के बीच में जो लाइन है कितना हो गया, 4.5 सेंटीमीटर। अगर 3 पे करेंगे तो 3 सेंटीमीटर, 5 पे करेंगे तो 5, 6 पे करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्केल से नापना आपको आता है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ये सब बच्चों को आता है, ये आप मैथ्स में करते हैं, इजी है ये। ज़्यादा छोटी क्लास होती है आपकी तो मैं और अच्छे से समझाती। ठीक है, ये जो जीरो है ना, ठीक है, इससे नापना शुरू करते हैं। और जैसे 5 सेंटीमीटर तो 5 पे लेंगे, 4.5 है तो इसके 4 और 5 के बीच में जो लाइन है इस पे लेंगे। तो ऐसे हम मेजरिंग द लेंथ ऑफ द कार्ड ऐसे नापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स हम, मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन। कर्व लाइन को हम कैसे मापते हैं, वो हिंदी में थोड़े वर्ड्स गलत हो जाते हैं, मापना, नापना। ठीक है, इंग्लिश के ज़्यादा अच्छे से वर्ड्स आते हैं, मुझे हिंदी में कई बार गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन, अगर हमें कर्व लाइन को नापना है तो हम क्या करेंगे, मेज़र, इंग्लिश में आप मेज़र याद रखिए। वी कैन नॉट मेज़र द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन डायरेक्टली बाय यूजिंग अ मीटर स्केल। अगर कोई कर्व्ड लाइन या कर्व्ड वायर है तो हम उसको स्केल से नहीं नाप सकते। द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन इज मेजरिंग बाय यूजिंग अ पीस ऑफ थ्रेड। तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, थ्रेड यूज़ करते हैं हम। ये आप डायग्राम में देख लीजिए, मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन यूजिंग अ थ्रेड, तो हम उसको थ्रेड से नापते हैं। ठीक है, आप डायग्राम में देख लीजिए कैसे नापेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन आवर डेली लाइफ वेयर वी यूज़ अप्रॉक्सीमेशन। ये हमसे ये पूछ रहा है कि हम अपनी डेली लाइफ में अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ कहाँ पे करते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी ऑफन नीड टू मेक एस्टिमेशन और अप्रॉक्सीमेशन। estimation या approximation, you may guess whether your friend is taller or shorter than your approximation। अगर हमें दो बच्चों की हाइट नापती है तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार स्केल या कुछ भी यूज़ करते, और स्केल से हाइट नहीं नाप सकते। तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार मेजरिंग टेप का यूज़ करते हैं ना नापने के लिए। जब दो बच्चे साथ में खड़े हो जाते हैं तो हम बता देते हैं कि आप ज़्यादा लंबे हो और आप ज़्यादा लंबे नहीं हो,
और अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ कहाँ पे होता है, जब मम्मी हम किचन में खाना बनाते हैं तो हम बिल्कुल नमक वमक ऐसे नाप के नहीं डालते, हमें जब खाना हम बनाते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है इतना नमक डलेगा, इतना मिर्ची। आपने कभी देखा है कि मम्मी तराजू लेके बैठी है कि 10 ग्राम नमक डलेगा या 10 ग्राम मिर्ची डलेगी? वो चम्मच का अपना हिसाब होता है, जब खाना बनाते रहते हैं तो अपने आप अंदाज़ा होता है। वी डोंट मेज़र स्पाइसेस वाइल कुकिंग। सेकेंड पॉइंट में देखिए, वी डोंट मेज़र स्पाइसेस वाइल कुकिंग। हम कभी भी जो स्पाइसेस होते हैं उनको मेज़र नहीं करते जब हम खाना बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन अप्रॉक्सीमेशन। अप्रॉक्सीमेशन की डेफिनेशन लिखनी है हमें। अप्रॉक्सीमेशन इज़ अ क्विक जजमेंट अबाउट अ मेजरमेंट, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन इज़ अ क्विक जजमेंट अबाउट अ मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी यूज़ आवर सेंस ऑफ साइट एंड टच टू मेक एस्टिमेशन। हम अपना कौन सा सेंस यूज़ करते हैं एस्टिमेशन के लिए? साइट एंड टच, ठीक है। ये छोटे छोटे फिलिंदा ब्लैंक्स में बना देती हूँ आपके लिए, ताकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कभी आ सकते हैं और आपको उससे चैप्टर बहुत इजीली समझ में आ जाता है, इसलिए मैं स्मॉल क्वेश्चंस भी बना देती हूँ आपके लिए, फिलिंदा ब्लैंक्स वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अप्रॉक्सीमेशन इज़ नॉट एज रिलायबल एज मेजरमेंट। अप्रॉक्सीमेशन जो है इज़ नॉट एज रिलायबल एज मेज़रमेंट। अप्रॉक्सीमेशन जो है हमेशा इतना रिलायबल नहीं होता, लेकिन मेज़रमेंट जो है तो वो ज़्यादा रिलायबल होता है, क्योंकि मेज़रमेंट में हम मेजरिंग टेप से नापते हैं और अप्रॉक्सीमेशन में अप्रॉक्स बताते हैं कि इतना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज है हमारा, कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। नेक्स्ट क्या है हमारा? कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। When an object is said to be in motion, an object is said to be in motion if it is changes its position. अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कब कह सकते हैं? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन रिमेन्स कांस्टेंट। अगर उसकी जो पोजीशन है रिमेन कांस्टेंट है, मतलब स्थिर है, विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इट इज़ सराउंडिंग्स। अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है, को अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, तो हम उसे क्या कहेंगे? कांस्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट डायग्राम आप देख लीजिए और सेकंड डायग्राम देख लीजिए। स्टडी द टू पिक्चर्स ए एंड बी द सेम प्लेस एट एन इंटरवल ऑफ 5 सेकेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट में आप देख लीजिए, सिचुएशन ऑफ मोशन एंड रेस्ट, ठीक है। ये तो आपको इजीली समझ में आ गया। अगर कोई चीज़ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो वो मोशन में, और पोजीशन चेंज नहीं कर रही तो वो रेस्ट में है, इसमें इतना कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? टाइप्स ऑफ मोशन। क्लासीफाई द मोशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है। क्लासीफाई द मोशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू देम। कितने प्रकार के मोशन होते हैं? नंबर 1 ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, नंबर 3 रोटेटरी मोशन, नंबर 4 ऑसिलेटरी मोशन, नंबर 5 वाइब्रेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन एंड नॉन पीरियोडिक मोशन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन एंड वेयर ट्रांसलेटरी मोशन अप्लाई। ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो कहाँ पे अप्लाई होता है? ठीक है, व्हेन ऑल द पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव द सेम डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम देन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी ट्रांसलेटरी मोशन। व्हेन ऑल द पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव द सेम डिस्टेंस, ठीक है, इन अ गिवन टाइम, ठीक है। अब हम जो ट्रांसलेटरी मोशन है उसके 2 एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। अ चाइल्ड गोइंग डाउन अ स्लाइड। एक बच्चा स्लाइड पे गोइंग डाउन आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। और अ व्हीकल मूविंग ऑन अ रोड। एक व्हीकल रोड पे जा रहा है, वो कौन सा मोशन कहलाता है? ट्रांसलेटरी मोशन कहलाता है। नंबर 2 है सर्कुलर मोशन। हम सबसे रिलेटेड अलग अलग तरह से सबके अलग अलग क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सर्कुलर मोशन। व्हेन एंड वेयर सर्कुलर मोशन अप्लाई और डिफाइन सर्कुलर मोशन।
ये गिव सम एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन ये हो गया, देख लीजिए, आप आराम से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा व्हेन एंड वेयर सर्कुलर मोशन अप्लाई, कहाँ पे सर्कुलर मोशन अप्लाई होता है ये आप देख लीजिए। डिफाइन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन को डिफाइन कीजिए। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ इट इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है इट इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन, तो उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के कुछ एग्जांपल्स दीजिए। मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, नेक्स्ट है मोशन ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच और अ क्लॉक। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, सर्कुलर मोशन के जो एग्जांपल्स है ढंग से याद कर लीजिएगा। जैसे आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, फिर ऑप्शंस दे देंगे आपको, सर्कुलर मोशन है, रोटेटरी मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन है, 3-4 ऑप्शन दे देंगे, फिर आपसे पूछा जाएगा ये कौन से मोशन का एग्जाम्पल है। तो आपको ये सारे एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, मतलब आपको समझ में आने चाहिए कि किसका एग्जाम्पल है। अगर आपके पेपर में आ जाता है मोशन ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच और अ क्लॉक, तो आप क्या कहेंगे, ये किसका एग्जाम्पल है, सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट थर्ड है हमारा डिफाइंड रोटेटरी मोशन। नेक्स्ट है हमारा रोटेटरी मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रोटेटरी मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रोटेटरी मोशन, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रोटेटरी मोशन इफ इट इज मूव्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस विदाउट चेंजिंग इट्स पोजीशन। ठीक है, आपने लट्टू देखा है कभी, जो बच्चे खेलते हैं, वो रोटेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। नीचे डायग्राम में दिखाया भी गया हुआ है। गिव सम एग्जांपल ऑफ रोटेटरी मोशन, द मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अ फैन, जो ब्लेड होते हैं फैन के, वो किसका एग्जांपल है, रोटेटरी मोशन का एग्जांपल है। स्पिनिंग टॉप, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का मतलब है मेरा, आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज एन एग्जांपल ऑफ, आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे जो भी मोशंस के टाइप्स होते हैं, और फिर आपसे पूछा जाएगा ये किस मोशन का एग्जांपल है, इसलिए मैंने इसके आगे लिखा है इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। ये जो थर्ड पॉइंट है ना इसका, इसमें से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है। ठीक है, फोर्थ मोशन है हमारा ऑसिलेटरी मोशन। व्हेन एंड वेयर oscillatory motions applied, when an object moves to and fro about its mean position, its motion is called oscillatory motion. ठीक है, ठीक है। गिव some example of oscillatory motion, motion of a swing, motion of a swing, the pendulum of a clock, the piston of a car. ठीक है, ये आप डायग्राम में देख लीजिए। ठीक है, मैंने सबके डायग्राम भी लगाए हैं, सॉरी एक सेकेंड, चल नहीं पाया। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट मीन्स पोजीशन, ये आप देख लीजिए, डायग्राम भी देख लीजिए, आप सबकी बुक में भी हैं ये डायग्राम्स। ठीक है, तो मैंने बुक में से स्मॉल करके नोट्स बनाए हैं। ठीक है, आप ये देख लीजिएगा। इसके जो एग्जांपल्स हैं आपको समझ में आने चाहिए, क्योंकि इनमें से एमसीक्यूज क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं डिफाइन वाइब्रेटरी मोशन। नेक्स्ट हम करेंगे डिफाइन वाइब्रेटरी मोशन। वेयर नीडेड वाइब्रेटरी मोशन, द मोशन इन विच अ पार्ट और पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड। गिव एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन, एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ चेस्ट ड्यूरिंग ब्रीदिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। जब हम सांस को अंदर लेते हैं और बाहर करते हैं, चेस्ट ड्यूरिंग ब्रीदिंग, एन एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, ब्रीदिंग। ठीक है, डायग्राम देख लीजिए, ये वाइब्रेटरी मोशन का एग्जाम्पल है।
और ये जो एग्जाम्पल है ये भी पेपर की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। आपको ये आ जाएगा ऑप्शन, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ चेस्ट ड्यूरिंग ब्रीदिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है और एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि ये एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट है हमारा डिफाइन पीरियोडिक मोशन और डिस्क्राइब पीरियोडिक मोशन इन योर वर्ड्स। ठीक है, अ मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। अ मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ, जो अपने आप को रिपीट करता रहता है आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल्स दीजिए। द स्विंगिंग पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक। नेक्स्ट है हमारा हार्ट बीट ऑफ अ नॉर्मल पर्सन। ये पेपर में आपके क्वेश्चन आ सकता है कि हार्ट बीट ऑफ अ नॉर्मल पर्सन, और फिर आपको 4 ऑप्शंस आ जाएंगे और अलग 4 तरह के जो अलग अलग टाइप्स के मोशन है उनके 4 एग्जांपल्स आपको दे दिए जाएंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये किसका एग्जांपल है। ठीक है, द मोशन ऑफ द मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। ठीक है, मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज पीरियोडिक मोशन। मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज पीरियोडिक मोशन। ठीक है, ये पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है। मैंने सबके डायग्राम लगा दिए ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नॉन पीरियोडिक मोशन। डिफाइन नॉन पीरियोडिक मोशन, व्हेन एंड वेयर नॉन पीरियोडिक मोशन अप्लाइड। आंसर है इसका, द मोशन दैट डज नॉट रिपीट इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन पीरियोडिकल मोशन। जो खुद को एक रेगुलर इंटरवल्स के बाद रिपीट नहीं करता वो नॉन पीरियोडिक मोशन होता है। गिव एग्जांपल ऑफ नॉन पीरियोडिक मोशन। द स्विंगिंग ऑफ आवर आर्म्स और लेग्स आर रिपीटेड बट नॉट पीरियोडिक। दस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल मोशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, मल्टीपल मोशन। जब किसी भी उसमें ना एक से ज़्यादा मोशंस अप्लाई होते हैं उसे मल्टीपल मोशन कहते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट मोशंस एट सेम टाइम। जब कई तरह के मोशंस का एक समय में यूज़ होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल मोशन कहते हैं। क्वेश्चन है हमारा, व्हेन एंड वेयर 2 और मोर टाइप्स ऑफ मोशन अप्लाइड एट द सेम टाइम। इसका आंसर, सम टाइम्स एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स 2 और मोर टाइप्स ऑफ मोशन एट द सेम टाइम, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड मल्टीपल मोशन। कई बार एक ही चीज़ को चलाने में एक से ज़्यादा मोशंस का यूज़ होता है, उसे हम मल्टीपल मोशन कहते हैं। ठीक है, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ मल्टीपल मोशन। A boy riding bicycle is an example of multiple motion. A boy riding a bicycle, एक बच्चा साइकिल पर जा रहा है, साइकिल चला रहा है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल मोशन। द व्हील्स ऑफ अ साइकिल रोटेट, जो साइकिल के जो व्हील्स है वो रोटेट होते हैं जब, तो वो हुआ रोटेटरी मोशन। एंड एट द सेम टाइम मूव फॉरवर्ड इन अ स्ट्रेट और कर्व पाथ, और वो आगे भी बढ़ रहा है। एक तो उसके पहिए भी चल रहे हैं और वो आगे भी बढ़ रहा है इन अ स्ट्रेट और कर्व पाथ, तो ये क्या हो गया, ठीक है, रेक्टिलिनियर और कर्वीलिनियर मोशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल मोशन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल मोशन, और जो मूवमेंट है अर्थ का वो भी मल्टीपल मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है, जैसे आपको दे दिया जाएगा, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश मोशन। फिर आपको क्या करना होगा, मल्टीपल मोशन लिखना होगा, या तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा या ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। आपको ये लिख दिया जाएगा और आपको 4 टाइप्स मतलब मोशंस के जितने भी टाइप्स करवाए उनमें से कोई भी 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा ये कौन से मोशन का एग्जाम्पल है, तो आपको उस पर टिक करना होगा। जो एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स बनते हैं इन्हीं में से बनते हैं, कोई अलग से नहीं बनते स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमारा हो गया। फिर आप ये देख लीजिए, मल्टीपल मोशन के डायग्राम आप देख लीजिए।
डिस्क्राइब मल्टीपल मोशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ये आप देख लीजिए। साइकिल में का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, और मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल मोशन, ये आप देख लीजिए। मैं जूम कर देती हूँ, ठीक है। मैं एक पेज पे काफ़ी देर रोकती हूँ ताकि आप इजीली कर सकें, ठीक है। ये क्लास काफ़ी लॉन्ग हो गई है, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे, मैंने एमसीक्यूज में के हैं, ये आप देख लीजिए। क्वेश्चन हमारा, द मोशन ऑफ द मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ आर एग्जाम्पल ऑफ, ये 4 ऑप्शंस हैं, तो ये क्या होगा, पीरियोडिक मोशन होगा हमारा, ठीक है। क्लास काफ़ी लॉन्ग हो गई है, 45 मिनट्स की हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अर्थ रोटेट अबाउट इट एक्सिस एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज इन अ सर्कुलर पाथ, एग्जाम्पल ऑफ किसका, ये नॉन पीरियोडिक मोशन का है, ठीक है। स्पिनिंग टॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ रोटेटरी मोशन, 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, आपको उसमें से बताना होगा। तो स्पिनिंग टॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ रोटेटरी मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइकिलिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, नेक्स्ट है हमारा, साइकिलिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन, नॉन पीरियोडिक मोशन, मल्टीपल मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। इसका क्या होगा आंसर, मल्टीपल मोशन होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारा, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल मोशन, इसमें मैंने ऑप्शंस नहीं दिए, आपको वैसे ही करवा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट पेज देख लीजिए आप, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ चेस्ट ड्यूरिंग ब्रीदिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, 4 ऑप्शंस आपके होंगे, उसमें से आप किस पे टिक करेंगे, वाइब्रेटरी मोशन पे। नेक्स्ट है हमारा, मोशन ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच और अ क्लॉक इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। हार्ट बीट ऑफ अ नॉर्मल पर्सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। या फिर फिलिंदा ब्लैंक्स देख लीजिए, या आप खुद कर लीजिएगा, इसमें कुछ ऐसा है नहीं समझाने वाला, फिर भी मैं रीडिंग करके बता देती हूँ। 45 मिनट्स की क्लास हो गई है, मेरा भी गला सूख गया है, ठीक है। नंबर 1 है हमारा, ट्रांसपोर्टेशन इज अ वे ऑफ मूविंग पीपल एंड थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आपको फिलिंदा ब्लैंक्स होगा, आपको बताना होगा। नेक्स्ट है हमारा, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द अननोन क्वांटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू be measured with the standard unit of measurement. Number 3 है हमारा, standard unit of measurement are those that have a fixed quantity and therefore do not vary from person to person or place to place. 4th है हमारा, length is the distance between any two points or places. length क्या होता है, 2 points के बीच का distance. 5 है हमारा, motion When a body is in a अगर कोई भी बॉडी कंटिन्यूसली चेंजिंग अपनी पोजीशन कर रही है तो वो किसका एग्जाम्पल है, मोशन का। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, और अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। बाय बाय स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियोस पे बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन मैंने देखा है कुछ पेरेंट्स और बच्चे बहुत जल्दी में रहते हैं, ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना कमेंट करते हैं। वैसे लाइक शेयर और कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन जितने व्यूज़ आ रहे हैं उतने लाइक शेयर और कमेंट नहीं आ रहे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।